So decrease in kinetic energy is greater minus smaller. Change in kinetic energy means final minus initial. Decrease in kinetic energy means greater minus smaller. Because I already know that kinetic energy is decreased, so I will subtract the greater quantity minus smaller. So which one is the greater quantity? I know the earlier initial was greater and now the kinetic energy is decreased. So initial minus final. So here your answer will be negative and here your answer will be positive, because you have here this negative tells you that this is decrease. Here the answer is positive because you have already taken the word decrease. So this is telling you the decrease. So students, I hope that you have understood. Yes, sir. Now, decrease in kinetic energy is equals to, I know that earlier I had greater and now I have smaller, the final one. So greater minus smaller, and that is equals to 9 by 25k. So this is the decrease. Now what will be percentage decrease? So percentage decrease is equals to, this is what I have right now divided by this is, so this is what decreased is, okay, this much is decreased, and original I had k. So multiply by 100. So this is decrease this much quantity and the base was k, so multiply by 100. So that is 9 by 25 into 100. This is equals to 9 multiply 4, that is equals to 36%. So यहीं पर ही, so this is percentage यहाँ ना लिखें, so percentage decrease is 36. So students, there is decrease in 36%. So which option is correct? B. B option is correct. B. Okay. So option B is correct. So let me repeat this question once again. First of all, I have momentum is equals to m into v. Then I have kinetic energy equals to half mv square, right? So I'm writing it as this equation 1, this equation 2. Now I want to replace, I want relation between P and K. So P is equal to mv. If I replace this with P, still I have V left with me. Okay. So I also want to replace this V also, because this V is variable, that is why. So I can multiply and divide this by m. So now I have one more Vm. So this is equation 1, this is equation 2. So put mv is equals to P in equation second using first. So I'm using first equation and putting it in second.
So write P equals to mv and P equals to mv. So what the relation I have got? K is equals to P square by 2m. So this is in terms of K, and in terms of P I will write as under the root 2mk. Students, this is very important relation. I told you that in 12th class also you will need this relation. So very important relation. Now our question was that if momentum is reduced by 20%, so you can assume it like you had 1 as a whole and you are taking away 20% of it. So this is 1/5 part you have taken away. So you are left with 4 by 5 parts. Okay, or 0.8 P. So this is your P dash. Okay, initially the momentum was P, but now the momentum is 0.8 P. So momentum is reduced by 20%. So you need to tell that how much will be the decrease in kinetic energy. So decrease in kinetic energy is greater. Earlier you had greater and now you have smaller kinetic energy. So find the value of K dash. So K dash will be find from this formula. Put the value of nu P. So means K dash is equals to P dash upon 2m square. Right? So what is the value of P dash? This is P dash 0.4 by 5 P or 0.8 P. So 4 by 5 P I put here. So new kinetic energy is 16 by 25 K. So how much is the decrease? Earlier it was K, now it is 16.5 K, so decrease is 9 by 25 K. So how much in terms of percentage? Earlier it was whole K, but now it is decreased by 9 by 25. So the decrease is 36%, which is B option is the correct option. So students, one more thing I want to tell you. This thing I have already told, that change in kinetic, when you have the change word, then you need to write final minus initial. And here your answer will be negative. So this negative or positive will tell you whether the change is positive means increase, if the change is negative means decrease. And if you directly, instead of writing change, you write decrease, so this always means greater minus smaller. So you know the earlier one was greater and the final one is. So one more thing along with this I want to tell you is that this change always means final minus initial. So one thing is that if you are writing for displacement, suppose, so you'll be writing that RF minus RI. You can also write it in terms of 2 and 1, R2 minus R1. You can also write it R minus R dash. So students, these are the 3 ways of writing initial and final value. You need to learn the language of physics, that for final either write final or initial is I. So final minus initial is the change. Now initial will be 1, you are starting from 1 and then to 2. Okay, here it is final is R dash minus R. So when you start with R as initial, then the final will be R dash. आपने R dash लगा दिया, एक और होता तो R ट्रिपल डैश लगा देते, आप डबल डैश लगा देते. तो इस तरीके से काउंटिंग हम शुरू कर सकते हैं. और फिर कैसे करते हैं, 1 2 ऐसे. तो इज दिस क्लियर? तो दिस वे यू कैन राइट द इनिशियल एंड फाइनल. चलो, तो नोट डाउन हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay, now next part. No, sir. If the momentum is increased by 20%, then now the next part is that
momentum is increased by 20%. So this is question MCQ 16, and so page number 6.60. Now momentum is decreased by 20%. So initial momentum was C. Now it's your choice. Sir, I want to write it as P1, कोई problem नहीं है. That is your initial. Sir, I want to write it as PI, कोई problem नहीं है. That is your choice. Sir, I want to write it as P. So it's your choice whether you are writing P or PI or P dash or P1. All these things. Sorry, P dash cannot, of course, not be there. If you are writing P, then this will be for the P1. So you can use these three symbols for initial momentum. And what will be symbols you will be using for final, means letters, not symbols, these are letters. Final momentum, what letters you can use? So you can use the letters. If you are using P, then you will be using a P dash. If you are using PI, then you will be using PF. If you are using P1, then you will be using P2. So it's your choice, students, which one you want to choose. So we can use P and P dash, that's your choice. So the momentum is decreased by 20%, means your momentum initial was P, but it is reduced by 20%. So how much is the left? 20% means 1/5, right? So it is reduced by 20%. 20% means how much is the left? 80%, that is 4/5. So P dash is equals to 4/5 P. This is the meaning of 20% decrease. So the new momentum is 4/5 of the original momentum. तो 80% रह गया अब, ठीक है? Okay. Then the kinetic energy increase. Question, sorry, ये decrease लिख रहे हैं हम, question है increase. So students, the question is that the new momentum is 20% increase. Sorry. So if it is increase, it means 1/5 is increase. So earlier it was 5/5. Now it will be 6/5. समझ गए? 20% इंक्रीज मीन्स अब नया मोमेंटम कितना हो गया? तो जो न्यू मोमेंटम आपका P डैश, दिस विल बी ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ, चलो ऐसे कर लो, 20% ऑफ P. अब तो ठीक है, तो P प्लस 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 इंटू P. इसका क्या मतलब? 20/100 का मतलब 1/5P. इसका क्या मतलब होगा? अब ये 5 का P का मतलब क्या है? 5/5. तो कितना हो गया? 6P/5. बेटा यही लिख रहा था ना मैं शुरू में. तो अब आगे से तो इतना जो है मतलब कम से कम, अब यही चीज अगर डिक्रीज होती जो हमने पहले किया 20% डिक्रीज, तो P डैश इज इक्वल्स टू P माइनस 20% ऑफ P. That is equals to P minus 20/100 into P. That is equals to P minus 1/5P. That is equals to 4/5P. तो ये है 20% इंक्रीज और ये हो गया 20% डिक्रीज. तो प्लीज, तो ये डायरेक्ट आप इतना कॉमन सेंस है भाई, P डैश 20% इंक्रीज मीन्स 1/5 इंक्रीज हो गया, तो 6/5P डायरेक्ट लिख सकते हैं. चलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको. अच्छा, आफ्टर दिस you need to tell that kinetic energy of course increasing because see P is increasing, P is equal to mv, so mass is constant, so obviously velocity is increasing, and if velocity is increasing kinetic energy will also increase. So how much is the
परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ऑब्वियसली परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो क्या होगा, डेट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डेट विल बी योर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, चलो परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज मीन्स व्हाट, परसेंटेज इंक्रीज मीन्स कि कितना इंक्रीज हुआ how much is the increase in kinetic energy divided by original kinetic energy multiply by 100। भाई यही तो होता है परसेंटेज इंक्रीज का मतलब, जो चीज ये इंक्रीज लिखा डिवाइडेड बाय, अच्छा इंक्रीज कैसे निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इंक्रीज होगा आपका मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपकी mv, तो फाइनल अगर आपको और पता लग जाए तो वो आप यहां पुट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी परसेंटेज इंक्रीज। तो k डैश आपको निकालना है, स्टूडेंट समझ गए। और k डैश किसके इक्वल है, जब k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m है, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, तो k डैश क्या हो जाएगा p डैश स्क्वायर अपॉन 2m। p डैश स्क्वायर क्या है आपने निकाला अभी 6/5p, सो k डैश, so this will give me k dash is equals to 6/5 p का square divided by 2m, and that is equals to 36/25 p square by 2m। मैं जानबूझकर 2 को नहीं काट रहा, क्यों, क्योंकि p square by 2m क्या आपका ओरिजिनल k, तो k का एक तो ये था और दूसरा k क्या है, k इज इक्वल्स टू लिखा ना आपने, यहां भी लिखा है k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, ओके। तो k डैश जो, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m की जगह क्या लिख सकता हूं मैं k, तो 36/25 k, तो ये आ गई आपकी नई काइनेटिक एनर्जी। अब नई काइनेटिक एनर्जी को यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा मेरा परसेंटेज इंक्रीज इन k, परसेंटेज इंक्रीज इन k is equals to, so this is equation 1, so from first I am writing and putting this second in first, from first using second, so percentage increase in k is equals to 36/25 k minus k upon k into 100, so k will cancel out and you will left with 36/25 minus 1 will be left, so 1 how k cancel आ जाएगा, ऊपर से कॉमन आ जाएगा k और नीचे भी k, तो k से k will cancel out, so this is 1 means 1, how can you write 1, 25/25। अच्छा परसेंटेज आपने वर्ड यहां लगा लिया, राइट, तो अब ये 100 जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सो दैट्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया ये 11/25 into 100, that is 4, so this is 44। तो परसेंट यहां लिख दिया है तो यहां नहीं लिखेंगे आप, अगर सिर्फ होता इंक्रीज इन के तो आप लिखते 44%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो ऑप्शन ये तो मैं आपको आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, अगली बार आएगा तो इट वोंट टेक मोर देन 30 सेकेंड, समझ गए ना, अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ओके। हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं नीट में, जेई मेंस में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ भी आ सकते हैं 11th क्लास में भी,
सिमिलर क्वेश्चंस। अच्छा, और कोई डाउट है इसके अलावा? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 20 भी बता देना। क्वेश्चन नंबर, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। एन अनलोडेड कार मूविंग विद वेलोसिटी u। तो क्वेश्चन 20 है, 20 MCQ। So I have a car and this car is it is unloaded and moving with velocity u on the frictionless road, can be stopped in a distance s। और यहाँ आकर this car is stopped here, means the final velocity is 0 at distance s। तो इसके सेंटर से ले रहे हैं तो इसके भी सेंटर से लेंगे। If the passengers add 40% to its weight, अगर आपने 40% यानी कि जो वेट है, तो वेट मीन्स mg, तो g तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहाँ अगर मास था m, तो अब आपने 40% ऐड कर दिया, तो फिर वही बात आ गई, तो m का 40% इज इक्वल टू m प्लस 40% ऑफ m। और ये कितना हो गया 40% ऑफ m? 4/10m, so that is 2/5m, तो we can write it as 5/5। so कितना आ गया आपका m? अब 7/5m। तो आप खुद सोचो, 20% 1/5 होता था, तो 40% कितना हो गया 2/5। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये याद कर लो, ये जो है 10% होता है 1/10, 20% मीन्स 20/100, तो 20/100, तो ये 10% मीन्स, परसेंट का मतलब ये 100th होता है, तो 1/10। 20% मीन्स 20/100, that is 1/5। 25% means 25/100, that is equals to 1/4, and 50% means 50/100, and that is equals to 1/2। ओके, तो ये थोड़ा सा जो है मतलब ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर कितना 40, तो 40% कितना होगा 40/100, and that is equals to 2/5। 2/5। ओके, और 80% कितना होगा, 20 का डबल हो गया 80, तो अपने आप ही 4/5 हो गया इसका डबल 2/5 का, तो 80/100 इट इज इक्वल्स टू 4/5। चलो, तो 40% इंक्रीज हुआ मीन्स 2/5 इंक्रीज कर दो, तो 2/5 था तो 7/5m। चलो, ये अब पहले इसका मास था m, और अब जो वैगन है उसका मास है 7/5m। एंड ब्रेकिंग फोर्स रिमेन द सेम, तो जो फोर्स आपने लगाया था ऑब्वियसली फोर्स इस डायरेक्शन में था, तभी ये रुकी थी। तो नाउ द ब्रेकिंग फोर्स, सो दिस वाज ब्रेकिंग फोर्स। नाउ ब्रेकिंग फोर्स इज सेम, यू हैव अप्लाइड द ब्रेकिंग फोर्स इज सेम FB। द स्टॉपिंग डिस्टेंस एट वेलोसिटी v इज नाउ, तो अब कितना जल्दी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली पहले रुक जाएगी उससे, जो पहले रुकी थी अब उससे पहले रुक जाएगी, है ना, या बाद में रुकेगी, मास बढ़ गया उसका, मोमेंटम बढ़ गया है, तो कहाँ रुकेगी बाद में। मोशन कौन बताता है, मोशन की पावर, मोशन कितना है, ज़्यादा है कम है, कौन बताता है, मोमेंटम। और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मास अगर आपने बढ़ा दिया तो मोशन भी बढ़ गया, यानी कि अब आपको एक बात था, मुझे कार रोकने के लिए ज़्यादा आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ट्रक रोकने के लिए बताना, किसको रोकना आसान है बेटे, ट्रक को रोकने के लिए कार को आसान, कार को रोक, अच्छा टॉय कार को रोकना आसान है या बड़ी कार को रोकना आसान है, टॉय कार को, क्योंकि उसका मास कम है, दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं। टॉय कार को रोकना आसान है या बड़ी कार को, टॉय कार। हाँ, उसी तरह
तो जब मास बढ़ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, तो इसीलिए ब्रेक भी लगाओगे तो वो दूर जाके रुकेगी। तो इसीलिए कहते हैं जो हैवी लोड के ट्रक है उनके सामने कार नहीं लानी चाहिए अपनी, क्योंकि वो ब्रेक भी लगाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। ओके, एकदम से रुकते वो, इवन यू अप्लाई ब्रेक्स। तो स्टूडेंट्स पहले इतने डिस्टेंस पर रुक गया था, लेकिन अब जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप इसको एस डैश मान सकते हो, दैट्स योर चॉइस कि आप क्या मानोगे, 1 2 डैश, दैट्स योर चॉइस। चलिए, तो एक चीज है इन दोनों में कांस्टेंट, और वो क्या है, फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स इज सेम। तो यहां बताओ कितना वर्क डन किया यहां आपने, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा, हमारा टॉपिक का नाम क्या, किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, क्या नाम है टॉपिक का, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसको तो लगा लो। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाँ बिल्कुल हाफ एम वी स्क्वायर। तो फाइनल कितनी होगी, 0। तो वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। ओके, वर्क डन इज नेगेटिव। अब अगर लोडेड कार है ये वाली, अब इसका मास बढ़ा दिया है, इसमें पैसेंजर्स बढ़ गए हैं, तो कितना हो जाएगा इसके ऊपर, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के इंटू एफ एस, है ना। तो लिख सकते हैं, या मतलब बात तो वही है, आप एफ एस को पहले लिखते थे तो इसमें भी एफ एस को पहले लिख लो, बाद में के को लिख लो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू दैट इज एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो यहाँ फोर्स किसने किया था, ब्रेकिंग फोर्स, किसने, ब्रेकिंग फोर्स। और ये नेगेटिव क्यों आया आपका वर्क डन, एफ बी एस अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन हाँ में वेरी गुड, force। क्योंकि जब भी वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स इधर थी और डिस्प्लेसमेंट इधर थी, तो एंगल वाज 180 डिग्री। ओके, चलो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितना चेंज होगी, हाफ एम। अब एम कितना आपका 7/5m, ये हो गया ना नया मास, तो एम डैश इंटू, हाँ वेलोसिटी तो वही है, ये u है ना यहाँ पे, ये u है ना, ये ऊपर से, दैट इज u स्क्वायर। अरे यस और नो, यस सर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बदल गई ना, तो यहाँ वर्क भी तो बदलेगा, वर्क डन सेम थोड़ी है, वर्क डन विल आल्सो बी डिफरेंट, सिर्फ एफ बी सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैंने डैश लगा दिया है, और जो मास था उस पर भी डैश लगता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर हमको कैसे पता लगा कि सेकंड केस में वही वेलोसिटी है? गुड, ये तो बेटे गिवन है ना आपको कि ये वेलोसिटी तो उतनी ही थी यहाँ पे। अच्छा गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है, दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास जो है इसमें, इसका मास 40% हो गया, पहले खाली ट्रॉली जा रही थी, अब मैंने उसमें मटेरियल रख दिया है 40% ऑफ द मास ऑफ द ट्रॉली। तो मास, अब टोटल ट्रॉली का मास है 7/5m। तो ऑब्वियसली जब आपने डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली चेंज होगी, तो लेकिन फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स इज सेम, सो द वर्क डन विल बी एफ डैश डब्ल्यू डैश और डिस्प्लेसमेंट एस डैश। तो एस डैश आपको निकालना है। ओके, हाँ सर। हाँ, तो चलो ये तो बड़ा आसान है, ये वेरिएबल आपको एस डैश चाहिए, और एक इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो कैसे एलिमिनेट, बाकियों को हमें एस डैश चाहिए आंसर में, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, बिल्कुल ठीक है। तो 1/2। तो देखो एफ बी से एफ बी कट जाएगा, तो क्या आएगा, एस अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया,
और m से m कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? अच्छा, इसमें हमें डायरेक्शन जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ हमें अगर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क अगर हम लिखेंगे तो वर्क डन विल बी हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमें पता है, नेगेटिव का इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही था कि ये दोनों अपोज डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो हमने इम्पैक्ट ले लिया। तो वर्क डन इज हाफ एम यू स्क्वायर। तो कितना आया? यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, एम से एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, है ना? तो डेट इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि ये था ना आपका एफ बी एस, ये एफ बी एस था ना, हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइड कर लो, या हाफ एम यू स्क्वायर की जगह एफ बी एस लिख दो, वो भी एक ही बात है। तो एफ बी से एफ बी कट जाएगा, तो यू विल गेट द सेम आंसर। चलो अब पहले जो कर रहे हो वही कर लो। हाफ से हाफ काट दिया आपने, एम से एम काट दिया आपने, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर। इधर आपने क्या काटा था? एफ बी से एफ बी, ठीक है। तो उधर बचा था एस अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या है 1, 0 मत लिख देना, माइनस नहीं कर रहे। चलो, तो नीचे क्या बचा? 7/5। तो हमें एस डैश निकालना था, तो एस डैश को इधर, 7/5 को इधर, तो एस डैश इज इक्वल्स टू 7/5। तो जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज वो वही सेम, ये कितने परसेंट? 40% इंक्रीज हो गई। कितना परसेंट? 40%। तो दिस इज 1.4s। तो अब ये 1.4s यानी कि 20% ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेम टू सेम जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो मास है आपका, इसके अंदर और इसके अंदर वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। आप देख रहे हैं, अगर रिमेनिंग थिंग्स कांस्टेंट कर दें, अब ये सारी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? इसका मेहनत करने का फ़ायदा, डेरिवेशन कर दिया आपने एक तरीके से इसको, कंसेप्ट को। अब डायरेक्ट अगर आप आगे से अगर कभी आता है तो ये आपके पास है एफ बी एस इज इक्वल्स टू हाफ एम, मतलब वो तो हम ले रहे, चलो कि भाई डायरेक्शन उल्टी है दोनों की। मैग्नीट्यूड अगर लें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले तो हाफ एम यू स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि अगर एफ बी सेम है तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि यू भी फिक्स, 1/2 भी फिक्स, एफ भी फिक्स। अगर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, ओके, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी M में जितना चेंज आएगा उतना ही स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लिखते हैं तो भी सही है, तो आप समझ जाओ S इज नेगेटिव ऑफ -M, यानी कि उतना ही जो है मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो नेगेटिव लिखो मत लिखो, कंसेप्ट अब आप समझ गए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 60% मास मैंने ट्रॉली में बढ़ा दिया तो कितने परसेंट, कितनी दूर जाकर रुकेगी ट्रॉली? जितना पहले उससे 60%। 60%, अगर मास आपने 60% तो डिस्प्लेसमेंट भी 60% रहेगी। तो जब आप न्यूमेरिकल करें तो इस तरीके से जो कंक्लूजन्स हैं वो हम ध्यान रख सकते हैं। तो ऊपर जो हमने किया था, अब हम अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसके इंक्रीज से कितने इंक्रीज का फर्क पड़ेगा। तो दो क्वेश्चंस जो हमने किए थे ऊपर, फर्स्ट वाले में डिक्रीज था, तो अब इसी तरीके से आप इनको एनालाइज करके देखना, ठीक है। जैसे मैंने इसको एनालाइज किया है तो वो स्क्वायर रूट है और एक बार स्क्वायर है, तो उसको आप एनालाइज करके देखेंगे तो यू कैन फाइंड दिस रिलेशन ऑल बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी क्योंकि कंसेप्ट आपको आप और बेटर समझते चले जाएंगे। तो एक बार लैंग्वेज समझ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब है, हाँ, और कोई प्रॉब्लम? अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 6.6 एनसीईआरटी पेज 120। अच्छा, ये टाइम सब के लिए सूट करता है 4 to 5? यस सर। ओके, यस तो ठीक है बेटे, 4 to 5 टाइम हो गया कल से, आज से इवन।
तो आज मेरी क्लास एक्चुअली कनेक्टिविटी इशू था, ओके, तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी. So let us do this example. This is very important example. You will learn a lot of maths and lot of physics by doing this example, which is on page 120 NCERT. A block of mass 1 kg. So I have a block of mass here. So this block has mass of 1 kg. So that's the mass. Now moving on a horizontal surface with speed Vi equals to, so Vi is equals to 2 meter per second, and it enters a rough patch from x equals to, so there is a, when I was moving it, there was rough patch, okay, little bit rough. So this is suppose your origin 0, here it was x equals to 0.1 meters, and this rough patch is up to x equals to 2.01 meter. So up to this point I have this rough patch. The retarding force on the block, so retarding force will of course be in opposite direction. On this block in the range is inversely proportional to the x over this range. So for this range, this retarding force is inversely proportional to x. So inversely proportional, and displacement and force are in opposite direction. So we will have the constant. So both are in opposite direction. So I will have negative, and k is the constant. So proportionality constant. So this formula will become minus k by r. So this is the resistive force, and this resistive force, of course this is minus k by r from, so it is for the rough patch only, right? So this is for x between 0.1, for the value of x ranging from 0.1 meter to 2.01 meters. Is this clear? Okay. And after that Fr is 0. So from this point onward Fr is 0, and before this also Fr is 0, because this is frictionless surface. So there is no retarding force. So retarding force is only between this patch, which is rough patch. So we have Fr only up to this, and this is the value of Fr. So I hope this is this figure is clear. Now what you need to find? You need to find the final kinetic energy. So you need to find the final kinetic energy here at this point. So if I am assuming the kinetic energy, initial kinetic energy is Ki, this is Kf, and initial speed, you know, initial speed is 2 meter per second. What is the final speed? So students, this is what you need to find. Okay. Now let us do this question. We know that work done is change in kinetic energy, work energy theorem. Now what is change in kinetic energy? Always final minus initial. Okay. Now we need to find Kf. So we can find Kf from here. Yes. But what is work done? So Kf minus Ki. Ki, I know the value of Ki. That is equals to half m Vi square. So I know the value of Ki. I don't have any problem with it.
But what is work? What is another formula of work? Okay, tell me one more thing. Is this resistive force constant or variable? Variable. Yes. So here it is, instead of r you can write x. That's the same thing. So that is the position. See, as the position is changing, as the x is changing, fr is changing, and value of k is also given to you. K is 0.5 joules. So fr is 0.5 upon x. So this is your fr. So value of k is given to you. What is the value of k? 0.5 joules. So this force you can clearly see that it depends on x. यहाँ कितनी थी? When x was 0.1, तो ये force कितनी थी? 0.5 upon 0.1, तो force कितनी थी? 5. ओके, और यहाँ कितनी थी जब x 1 था? यहाँ पर कहीं x 1 था ना, क्योंकि ये x 2 है, 0.01 है, तो यहाँ 1 था, तो फोर्स कितनी हो गई? फोर्स कम हो गई, 0.5 अपॉन 1. यहाँ कितनी ज़्यादा थी? यहाँ कम हो गई. और यहाँ यानी ये रफ पैच एक जैसा नहीं है. ओके, यहाँ कितनी रह गई ये फोर्स? 2 से 0.5 अपॉन 2. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, पोजीशन आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए, रेजिस्टिव फोर्स कम होती चली गई. यही मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का. और नेगेटिव का मतलब ये है कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. चलो, तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है. ये कैसा कैसा, अगर वर्क डन आपका कांस्टेंट होता तो फार्मूला था F डॉट डी, लेकिन अगर वेरिएबल है तो फार्मूला क्या होगा? xi टू xf F डॉट dx, राइट? वेरिएबल फोर्स का ये फार्मूला है ना? यस सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ, तो यहाँ जो रिटार्डिंग फोर्स आपकी, तो पुट करो इसकी वैल्यू, वर्क की वैल्यू जो रिटार्डिंग, तो ये वर्क किसके इक्वल है? xi टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन माइनस क्या f की वैल्यू? माइनस k अपॉन x इंटू dx. समझ गए? और जो नेगेटिव का इम्पैक्ट है वो मैंने ले लिया है. फोर्स जो है वो नेगेटिव ले लिया, तो 2 बार मत ले लेना इसको नेगेटिव. एक बार मैंने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव, मीन्स द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एंगल 180 है, तो ये मैंने ले लिया इसका इम्पैक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अगर इनके बीच में एंगल 180 हो तो क्या हो जाएगा? माइनस xi टू xf f इंटू डी एक्स. तो अब देखो मैं साइन हटा दिया, क्योंकि f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180, कॉस 180 इज -1. तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये आपके पास क्या आ गया? अब के एफ आपको निकालना था, तो के एफ इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा? ये प्लस, तो हाफ एम वी आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई कितना है? एक्स आई 0.1, एक्स एफ कितना है? 2.01. सो 0.1 टू 2.01 एंड दिस इज माइनस के. के की वैल्यू कितनी है? भरना हो तो अगले स्टेप में भर लो के की वैल्यू. बस तो यही भर पुट करनी चाहिए थी हमें. चलो, डजंट मैटर. वी आई की वैल्यू कितनी है? 2. कोई बात नहीं, यहाँ पुट कर सकते हो. तो कितना आ गया ये? हाफ इंटू एम इज 1 एंड वी आई इज 2 स्क्वायर माइनस 0.1 टू 2.01 माइनस के की वैल्यू कितनी है? अरे है ना 0.5 जूल्स. तो अच्छा, ये 2 बार माइनस क्यों ले रहे हैं हम? ये तो इधर ही है ना माइनस. दिस इज प्लस. एक ही बात है. ये माइनस बाहर ले लिया ना इसका. ओके, यस सर. this term I have taken
this side. So this will become, I have taken it this side, so this will become positive. This will remain the same. So this will be equals to, what is the value of k? 0.5 upon x into dx. Now kf is equals to 2 will left here, 1 2 will be cancelled out, minus, take the constant outside. When you are integrating, take the constant outside. So 0.5 is your constant. So what you are left with? 0.12, 2.01, 1 upon x into dx. अब स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला देख लो एक बार दोबारा से. So integration of x raised to the power n into dx, that is equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1. विनय अपना माइक ऑफ करो बेटे. विनय, so if it is d by x then it's x. आपको पता है इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c लगेगा. तो dx का x यहां है आपके पास 1 अपॉन x dx, तो इसका होगा log x. log की और इसका बेस क्या होगा? log x टू द बेस e. अब ये आपने पहली बार सुना होगा log टू द बेस e. ये नेचुरल लॉग है तो इसको ln लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में. ln मीन्स नेचुरल लॉग. तो थोड़ा सा लॉग के बारे में देखें. ये लॉग कहाँ से आया सर? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है log x. log x का मतलब क्या है? तो लॉग जो है दो तरह के हैं. एक log टू द बेस 10 और एक है log टू द बेस e. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मुझे 100 का log निकालना है. log जो बेस है, आपको 100 को इस बेस की एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखना है. 100 को जिसका बेस 10 हो तो लिखो 100 को जिसका बेस 10 हो. तो 100 को क्या लिखें? 10 टू द पावर 2. तो log की वैल्यू आ गई 2. ये होता है log का मतलब. अब सपोज यहाँ था, यहाँ e रेज टू द पावर 3, तो इस एक्सपोनेंशियल की जो पावर है डेट इज योर द वैल्यू ऑफ log. तो पावर कितनी है? 3. तो ये आ गया. सबको समझ आया log का मतलब? यस सर. अब यहां पर भी वही चीज है तो log आ जाएगा. सो डेट इज इक्वल्स टू kf इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5. नेचुरल log को ln लिखेंगे हम. ln ऑफ x. और कहां से कहां तक है ये जो वेरी कर रहा है? ये जो रेंज है, जो आपकी लिमिट्स है 0.1 टू 2.01. तो यहां पर ये डेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए प्लस c नहीं लिखा. चलो अब उसके बाद आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. 2 माइनस 0.5 फाइनल वैल्यू पुट करो x की जगह. फाइनल वैल्यू कितनी है? 2.01 माइनस x या इनिशियल वैल्यू लिखो 0.1. स्टूडेंट्स कल भी बहुत मैथ्स किया था, आज भी बहुत मैथ्स कर रहे हो. बस इतना ये समझ लो, ये आपने कर लिया तो पूरी फिजिक्स में आगे दिक्कत आने वाली नहीं है आपको बिल्कुल भी. तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना. आई विल अपलोड दिस वीडियो. चलो तो अब आ गया अब एक और फार्मूला लॉग का हमें सीखना पड़ेगा कि log a माइनस log b क्या होता है. तो log a प्लस log b होता है log a इंटू बी. एंड log a माइनस log b होता है log a डिवाइडेड बाय b. चलो तो ये वाला फार्मूला लगेगा. तो क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5 इंटू नेचुरल लॉग है. ये अगर कुछ लिखा ना तो इसका नीचे इसका बेस 10 है. तो स्टूडेंट्स इसको नेचुरल लॉग को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ln x और log 10 को लिखते हैं सिर्फ log. तो सिर्फ log लिखा तो इसका मतलब उसका बेस 10 है. और नेचुरल लॉग है तो आपको ln लिखना पड़ेगा, log मत लिखना. log का मतलब क्या है? उसका बेस 10 है. और n फॉर नेचुरल, l फॉर log. तो ये नेचुरल log है, इसका बेस होता है e.
ओके चलो, तो ये ln नेचुरल लॉग, या तो इसको लॉग टू द बेस, इसको सर मैं ऐसे लिख दूं लॉग टू द बेस ही, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें आपको 4 लेटर लिखने पड़ेंगे और इसमें आपको लेटर कितने लिखने पड़ रहे हैं, सिर्फ 2 ln बस। तो सिर्फ लॉग लिख दिया तो इसका मतलब बेस 10 है उसका, तो ln 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इसकी वैल्यू जो है, लॉग की वैल्यूज के लिए हमें टेबल्स मिली होती है, टेबल या कैलकुलेटर। वैसे आप लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये लॉग अगर आएगा तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो इसकी टेबल में मिलेगी। तो इसको 2.01, तो पॉइंट यहाँ से हट के पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 20.1 ये आपको वैल्यू गिवन मिलेगी लॉग टेबल से 20.1। और अगर आप इसको जो है, हम नेचुरल लॉग को, कई बार हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं मिलती, जो टेबल होता है उसमें लॉग 10 की वैल्यू गिवन होती है, जो हमें टेबल होता है उसमें किसकी वैल्यू होती है, 10 की। कुछ बात समझे? और ये जो है, तो अगर आप इसको 10 के बेस में चेंज करना चाहोगे तो ये होता है 2.303 इंटू लॉग 20.1, यानी कि आपने इसका, आप देख रहे हैं बेस इसका चेंज कर दिया आपने, अब 10 आ गया इसका बेस, पहले इसका ई था, ई की वैल्यू होती है 2.73, ओके। तो पहले इसका बेस ये था, अब इसका बेस ये है। तो आपकी बुक में डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है, सिर्फ ये जो लॉग है इसकी वैल्यू अब आपको टेबल से मिल जाती है। तो डेट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5 इंटू 2.03, और इसको अब आप इस वैल्यू को लेंगे लॉग टेबल से। तो नेचुरल लॉग की टेबल्स कई बार नहीं मिलती, लॉग टू द बेस 10 की टेबल मिलती है, और इसकी वैल्यू आएगी 1.303। देन you will solve it and kf is equals to 2 minus 0.5 into, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be 1.5, तो इसको पूरे को ही लिख लेते हैं। तो ये 3 है इसका ये 3 आएगा, तो ये टोटल इज 1.5। तो आपके बुक में डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0.3 दे रखी है बुक में, ओके। तो मतलब ये एसएलआर में ऐसे करके दे रखा है, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। इज दिस क्लियर? तो बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपके पास, डेट इज 0.5, और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल्स, ओके। तो ये आ गया आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स। हाँ बोलो बेटे। लास्ट 5th स्टेप से बताना दोबारा। हाँ, विच स्टेप? यहाँ से, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से। हाँ सर, बेटे एक स्टेप यहाँ से सुनो, आप डायरेक्ट जो है ये 2 स्टेप्स जो है ये एसएलआर में दे रखे हैं। मैं सिर्फ ये समझाया था कि लॉग का बेस चेंज कर दिया है, यहाँ लॉग टू द बेस ई है और यहाँ लॉग टू द बेस 10 है। अगर बेस चेंज करना है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका बेस जो है वो चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको टेबल्स में मिल जाती है लॉग 20, क्योंकि इसका बेस 10 है। मैंने बताया था बेस 10 है तो सिर्फ लॉग लिखेंगे, और बेस ई है तो ln। 2 तरह का लॉग है, अगर log टू द बेस 10 है तो उसको तो सिर्फ लिखते हैं हम log से, और अगर log टू द बेस e है तो उसको हम लिखते हैं ln। तो बस ये 2 चीज़ें। तो फार्मूला ये होता है कि अगर आप ln को ln को चेंज करना चाहते हो log में, तो आपको उसको 2.303 इंटू log। सो दिस इज द फार्मूला जो हमने यूज़ किया। आपको इसको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वैल्यू अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी ln 20.1 इज इक्वल्स टू 0.3। यू विल गेट दिस इन योर एग्जाम्स। नहीं तो पहले लॉग टेबल मिलती थी पुराने सिलेबस में,
और उसमें लॉग टेबल टू द बेस 10 की होती थी, तो इसलिए 2.303। तो जो कई बार आपको केमिस्ट्री में भी ऐसा मिल सकता है, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये सिखा दिया, बता दिया। ओके, आपको इसे लिखना लिख लो, नहीं तो लॉग 20.1 है तो डेट इज 0.3, सॉरी दैट इज इक्वल टू 3। लॉग 20.1 इज इक्वल टू 3 और 3 इंटू 0.5 इज 1.5। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये 20.3 नहीं है, सॉरी, दिस इज 3, दिस इज इक्वल्स टू 3। लॉग ln 20 प्लस 1 की वैल्यू होती है 3, ये आपको गिवन मिलेगी। ओके, चलो ओके स्टूडेंट्स, डन। तो यू नो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 0.5 जूल्स एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब आपको Vf निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m कितना है 1 एंड Vf स्क्वायर आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 2 इधर जाके हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू Vf स्क्वायर एंड Vf इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल आ गया 1 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write your homework for today. SL Aurora के questions, you can do now more questions. Example 13, 14. Example 13 to 23. You can do all the questions. If you have not done the questions yesterday, you can complete question number 13 to question number 23 SL Aurora and practice problems 1 to 11. Some of the questions you did yesterday also, I think 1 to 4. So students, practice these questions. These are examples, short example 13 to 23, and then exercise questions. And those who have, and what this is the homework of SL Aurora. Okay, now, so this is on page number 6.10 to 6.13, this work. So 6.10 to NCERT. Now NCERT, do all the examples from 6.1 to 6.6. So students, more you practice, more you will be comfortable with. And other than that, exercise questions, NCERT back exercise questions you can do. Question 6.1, you can do 6.2. Further you can do question number 6.11. 6.11 simple formula, work done is equals to fx dx plus fy dy plus fz dz. So this is for 6.11, and then 6.12, and then you can do 6.13, then you can do 6.14, after this 6.14 नहीं करना स्टूडेंट्स, ये कोल्यूशन का क्वेश्चन है, लास्ट में आएगा 6.14, डोंट डू इट। आफ्टर दिस yes, this question you can do 6.19, further you can do 6.20,
And so that's all. Okay, try these questions and you can watch these videos again. Okay, thank you so much.